अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। गवर्नर की तौहीन करना बीआरएस लीडरों की आदत। कांग्रेस हुकूमत ने जो वादे किए उसको एक के बाद दीगर पूरा किया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने किया दावा। जनूबी हिंद की रियासतों की 22 मार्च को ऑल पार्टी मीटिंग। हल्कों की हदबंदी मामले को लेकर डीएमके के वफ्द की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। तेलंगाना गवर्नर का असम्बली से खिताब चैट जीपीटी से तैयार किया गया। साबिक़ा रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम, ऐवान में हुआ हंगामा। तेलंगाना काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी जरूरी, फौरी एक मुस्लिम शख्स को रियासती वजीर बनाया जाए। बीआरएस लीडर महमूद अली का रेवंत रेड्डी हुकूमत से मुतालबा। 6 रियासतों में 85 लाख बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर की फिर तनकीद। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा से मुतालिक अपने साबिक़ा बयान से यू टर्न ले लिया। साबिक़ा मौक़िफ़ में तब्दीली, कहा फ़लस्तीनियों को नहीं निकाला जा रहा है। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद से जुड़ी खबरों की। कांग्रेस हुकूमत ने जो वादे किए उसको एक के बाद दीगरे पूरा किया जा रहा है और बीआरएस लीडरों की आदत सिर्फ तनकीदों और इल्ज़ामात लगाने की है। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि साबिक़ा गवर्नर और मौजूदा गवर्नर की बीआरएस की जानिब से मुसलसल तौहीन का सिलसिला जारी है। Include all the development and welfare schemes of the Congress government. What we promised before the elections, we are fulfilling one by one. TRS, BJP leaders, what they spoke outside the assembly are objectionable. Especially KTR criticizing governor is objectionable. Earlier also, they insulted the former governor Tamilisai. It has become an habit for them to insult the governor's state. What our governor has expressed today in assembly, or the truth and development and welfare schemes being taken by the Congress party. Assembly will run more than 10 days. तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को 22 मार्च को दिल्ली में इजलास में शिरकत की दावत दी, जिसमें लोकसभा हल्कों की हदबंदी के जनूबी रियासतों पर असरात पर गौर होगा। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि जनूबी हिंद के साथ इंसाफ के लिए हम मिलकर काम करेंगे और एनडीए शफाफियत के साथ काम न करेगी तो हम इसके खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जनूबी रियासतों की ऑल पार्टी मीटिंग का दावतनामा स्टालिन ने उन्हें रवाना किया, जिसमें वो शिरकत करेंगे। In principle, I have agreed to attend this party, but I have to take permission from my party. Sir, please tell in English about the meeting. Yes, Mr. Tamil Nadu Chief Minister Stalin has sent his delegation to invite me to 22nd meeting in Chennai regarding Government of India and Bharatiya Janata Party is conspiring against southern states in the name of delimitation. Delimitation is going to limitation for South. This is not delimitation. This is a limitation for South. At any cost, we are not going to accept that limitation. We are paying more tax than North India. We are more entrepreneurs. We are contributing everything for the nation. But Bharatiya Janata Party wants to settle score against South India. Why? Because South Indians are never allowed to grow Bharatiya Janata Party. Kerala, Tamil Nadu, Telangana, even Karnataka also they have defeated. They don't have any representation in Andhra Pradesh. That is why they wanted to settle a score. This is called vendetta politics. We are not going to allow Government of India, headed by Bharatiya Janata Party or NDA. They are conspiring against the South. I am welcoming Mr. Stalin. He has initiated this discussion. He is going to organize a meeting against all these conspiracies. Congress party, in principle, have agreed to attend this meeting. Then finally, I have to take a permission from my high command. Then definitely I will attend that. कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव ने भी जनूबी हिंद रियासतों की ऑल पार्टी मीटिंग की तारीख की। उन्होंने जनूबी रियासतों पर हिंदी ज़बान को थोपने की सख्ती के साथ मजम्मत की और ये कहा कि मरकजी हुकूमत मुतासिब रवैया इख्तियार कर रही है और जनूबी हिंद के साथ इंसाफ ज़रूरी है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर मिस्टर स्टालिन वो पहले से ही बोल रहा कि हिंदी
के नाम पे प्रचार करते हुए और डिलिमिटेशन लगाने का मतलब है कि नॉर्थ इंडिया को फायदा पहुंचाने के वास्ते कर रहा और साउथ को पूरा इग्नोर करने के वास्ते ये डिलिमिटेशन लगाया। ये डिलिमिटेशन और उसके साथ हिंदी थोपने का काम, इसके ऊपर ऑल पार्टी एक होना चाहिए और इसके ऊपर चर्चा करने के वास्ते वो काफी सभी लोगों को बुला रहा। मैं चाहता हूं कि ये डिलिमिटेशन से साउथ को अन्याय होगा। वैसा ही कांग्रेस पार्टी भी तेलंगाना में डिलिमिटेशन को अपोज कर रहे। डिलिमिटेशन से हमारे जो एमएलए सीट से, एमपी सीट से कम होगा। इसके ऊपर सभी लोग, हर पार्टी मिलके इसको अपोज करना। ये सैफरान का डिलिमिटेशन है, ये सैफरान पार्टी का काम है। अपोजिशन स्पेशली साउथ को अन्याय करने के वास्ते काम कर रहे हैं। इसके ऊपर सभी पार्टी एक होने के वास्ते वो कोशिश कर रहा है। इसमें तेलंगाना में भी डिलिमिटेशन के ऊपर अपोज कर रहे, इसके ऊपर भी लेटर लिखे। इसके ऊपर चर्चा चलना चाहिए ताकि साउथ को अन्याय से बचाना है और वो नॉर्थ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके ऊपर सभी लोग अपोज करने के वास्ते। बीआरएस लीडर साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि गवर्नर का असम्बली से खिताब ChatGPT से तैयार किया गया। ऐवान कांग्रेस का नहीं बल्कि अवामी नुमाइंदगी का मरकज है और तमाम पार्टियों को इसमें मसावी बोलने का हक है। इनके इस बयान को लेकर हुकूमती अरकान ने सख्त एतराज़ किया और इस दौरान ये भी इत्तला है कि उन्हें ऐवान से बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, जिसको लेकर बीआरएस पार्टी के अरकान असम्बली ने टैंक बंड पर अंबेडकर मुजस्समे के करीब एहतजाज किया। ఆ తర్వాత ఈ పుస్తకాలు తీసుకుపోయి మధ్యాహ్నం నుంచి సాయంత్రం వరకు మళ్ళీ తిరిగేసి కూడా చదివినాం అధ్యక్ష. తెలుగులో కొంత ఎందుకో కొంచెం ట్రాన్స్లేషన్ మక్కి కనబడ్డది. సరే ఇంగ్లీష్లో కూడా చూద్దామని అది కూడా చూసిన అధ్యక్ష. అధ్యక్ష ఈ మధ్యకాలంలో ఏఐ గురించి వెళ్ళి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు. సరే ఆ ఏఐ ఏం చేస్తుంది, ప్రపంచాన్ని మూస్తుందా తెలుస్తుందా తర్వాత విషయం, దాని మీద వేరు వేరు అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. కానీ ఇది కేవలం ఆ ఏఐ ద్వారా దాన్ని ఉపయోగించి తయారు చేసిన ప్రసంగంలా కనపడ్డది. ఏదో ChatGPT అని చెప్పి దాన్ని వాడి మనకేం కావాలో చెప్తే అదే తయారు చేస్తుంది అని చెప్పి మనం ఏదైతే వింటున్నామో బహుశా దాన్ని వాడి తయారు చేసేదేమో అని చెప్పి అనిపించింది అధ్యక్ష. కొందరు మిత్రులతో ప్రస్తావిస్తే కూడా వాళ్ళు కూడా అదే అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. साबिक वजीर जगदीश रेड्डी के इल्जाम के दरमियान डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी, रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू भी ऐवान में उठ खड़े हुए और ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस मौके पर स्पीकर असम्बली जी प्रसाद कुमार को मुश्किल सूरत हाल का सामना रहा है। जानिब अपोजिशन के इल्जाम, दूसरी जानिब रियासती वज़रा एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहे और ऐवान में हंगामा आराई देखी गई। इस मौके पर श्रीधर बाबू ने फौरी तौर पर जगदीश रेड्डी को ऐवान से मुअत्तल करने की मांग भी की, जिसको बाद में स्पीकर ने कबूल कर लिया। మన అందరిది ఈ సభ మా అందరికి సమానమైన హక్కులు ఉన్నాయి. మా అందరి తరఫున మీరు పెద్ద మనిషి మాత్రమే ఆడ కూర్చున్నారు తప్ప ఈ సభ మీ సొంతంగా కాదు. ఈ విషయం అధ్యక్ష వారు మాట్లాడిన ప్రతి పదం వెనుకకు తీసుకోవాల్సిందే. ఈ రోజు చేర్ని దూషించిన సందర్భంలో వారు క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే అధ్యక్ష. క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే అధ్యక్ష. ఆంకారంతో మాట్లాడకూడదు అధ్యక్ష. క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే అధ్యక్ష. క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే. ఈ రోజు చైర్ పైన దూషణలు చేస్తూ బెదిరించే కార్యక్రమం చేస్తూ ఈ రోజు వారు చేసిన మాటలు విషయంలో తప్పకుండా జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు వారి పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే అధ్యక్ష. कांग्रेस एमएलए मोहन राव ने साबिक वजीर जगदीश रेड्डी के गवर्नर के खुतबे पर तनकीदों को पूरी सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया और कहा कि ऐवान में भी गवर्नर की तौहीन की गई है। We respect Dalits, SC, ST, minorities and BCs. Congress party has given social justice to all the people. Today entire Telangana based upon social justice is respecting
supposed to respect the chair, being all MLAs condemning all Congress party. I am questioning Harish Rao and KTR, and you are promoting this. Jagadish Reddy is questioning the singular name. And the chair, the beautiful democracy, you have to respect the chair. As we are MLAs from the Congress party, we are asking our entire Telangana people to please see this sad moment, pathetic situation, and he has created. And yesterday also, the respectable Honorable Governor Garu, when the statement was coming, the entire BRS party was not even respecting. कलवा कुर्दी से रुकन असम्बली और कांग्रेस एम यशविनी ने कहा कि बीआरएस की जानिब से हुकूमती अरकान और रेवंत रेड्डी के खिलाफ इख्तियार किया गया रवैया तकलीफदा। उन्होंने कहा कि ऐवान के कवायद की खिलाफ वर्जी की गई, जगदीश रेड्डी को मुअत्तल किया जाना ज़रूरी है। is not acceptable because whoever the Jagadishwar Reddy Garu questioned chair, what are they teaching to everyone, like new contested MLAs or whatever it is? It's really not acceptable. Yesterday when governor prasangam is going on, they are interrupting so badly that we can't even hear what Governor Garu is speaking. And again today they are saying that we should not interrupt, we are not interrupting. They are doing everything and just pushing it on to someone else. We are demanding only one thing, that Jagadishwar Reddy Garu should be suspended. And also he is disrespecting Dalita speaker, which is really not at all acceptable. साबिक़ा रियासती वज़ीर दाखिला और बीआरएस लीडर महमूद अली ने कहा कि किसी मुस्लिम नुमाइंदे को फौरी तौर पर रियासती वज़ीर बनाया जाए। उन्होंने इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी हुकूमत से बाकायदा मुतालबा किया और कौंसिल में आवाज़ बुलंद की और अक़लियती स्कॉलरशिप समेत दीगर इंतखाबी वादों को पूरा करने का भी कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया। मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, जो आप वायदे किए, और ख़ास बात यह है कि माइनॉरिटी में आज तक एक भी मिनिस्टर को डिक्लेयर नहीं किया, एक एमएलसी डिक्लेयर की गई। अगर मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि कम अज़ कम मुसलमान मिनिस्टर के पास जाकर अपने मसाइल तो हल कर सकेंगे। आज एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं होने की वजह से हमारे तेलंगाना स्टेट के जो मुसलमान हैं काफ़ी परेशान हैं। मेरी हुकूमत से गुजारिश है जल्द से जल्द मिनिस्टर डिक्लेयर किया जाए। और ख़ास बजट में 4,000 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया था, उसमें वजाहत भी गई थी कि 3 करोड़ रुपये खर्चा किया जाएगा। 1,000 करोड़ रुपये जो अक़लियतें कमज़ोर है उन्हें लोन दी जाएगी, सब्सिडी लोन, मगर 15 महीने में 1 पैसा भी लोन नहीं दिया गया। मैं हुकूमत से मुतालबा करना चाहता हूँ, मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब है और छोटे कारोबार करते हैं, उन्हें सब्सिडी लोन दिया जाए ताकि वो अपने पाँव पर ठहर सके। उसी तरह स्टूडेंट्स के लिए अबुल कलाम तोहफे के नाम से एक वायदा किया गया था कि जो बच्चे 10वीं क्लास पास करते हैं उन्हें 10,000 रुपये दिए जाएंगे, जो बच्चे ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट कामयाब करेंगे उन्हें 15,000 दिए जाएंगे, ग्रेजुएशन करने पर 25,000 रुपये दिए जाएंगे, एमफिल और पीएचडी करने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन करने पर 1 लाख रुपए। 1 पैसा भी नहीं दिया गया। यकीनन तालीम के लिए इनकरेज करना बहुत अच्छी बात है, मगर औरंगल की रुकने पार्लिमान डॉक्टर कडियम काव्या ने प्रेस मीट से खिताब किया और कहा कि तेलंगाना की तरक्की कांग्रेस हुकूमत से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद ही वारंगल में एयरपोर्ट को ग्रीन सिग्नल मिला। सालों से ये एयरपोर्ट मनसूबा इल्तिवा का शिकार था, लेकिन अब मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इसे एनओसी मिल चुका है। చెప్పడమే కాకుండా ఏవైతే హామీలు ఇచ్చినే కాకుండా పేద ప్రజల కోసము తర్వాత ఎస్సీ బీసీ మైనారిటీ ఎస్టీ అందరికీ కూడా సమన్యాయం జరగాలి, విద్యతోటి అభివృద్ధి చెందుతారో వీళ్ళు ఈ కమ్యూనిటీస్ అన్న ఉద్దేశంతో దాదాపు 11,000 కోట్లతోటి ఈ ప్రాజెక్ట్ తీసుకురావడం చాలా సంతోషం. అందుకు ఆయనకి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వరంగల్కి సంబంధించి రీసెంట్గా గత 10 ఏళ్ల నుంచి ఏదైతే ఇంకా 15 ఏళ్ళని చెప్పుకోవచ్చు, 15-20 ఏళ్ళ నుంచి మామ్నూరు ఎయిర్పోర్ట్ అసలు ముందడుగు పడలేదు. అట్లాంటిది మొన్న రీసెంట్గా మనకి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఒక క్లాజ్ 5.2 ప్రకారము గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్లస్ హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ మధ్య ఉన్న ఒప్పందం ప్రకారం 150 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉన్న ఎయిర్పోర్ట్కి మనకి ఏమంటారో శాంక్షన్ అవ్వదు. కానీ ఆ హర్డల్ని మన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రత్యేక శ్రద్ధతోటి కూడా పట్టుదలతోటి మాకు ఉన్న 5-6 కిలోమీటర్ల లోపు, అంటే మాకు ఆల్మోస్ట్ 145 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది హైదరాబాద్ నుంచి, దాన్ని కూడా ఓన్లీ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా తెలంగాణలోని మామ్నూర్ ఎయిర్పోర్ట్కి ఆ నిబంధనని సడలించడం జరిగింది జిఎంఆర్ సంస్థ వాళ్ళు.
ఒక్కసారి ఆ హర్డిల్ బయటికి రాగానే మన కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 950 కోట్ల 50 ఎకరాల ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కావాలి. దాంట్లో ఆల్రెడీ 696 ఎకరాలు ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ చేతిలో ఉంది. మిగతా 253 ఎకరాల కోసము ఇప్పుడు వెయిట్ చేస్తున్నాము. बीआरएस पार्टी के सीनियर कायद रविंदर यादव ने उड़ीसा पुरी के साहिल पर एमएलसी कविता की सालगिरह तकरीब मुनफरिद तरीके से मुनक़िद की। उन्होंने पुरी के समंदर के किनारे एमएलसी कविता का शानदार रेत का मुजस्समा तैयार करवाया, जो देखने वालों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। सालगिरह के मौके पर उड़ीसा के फनकारों ने रक़्स पेश किया, जो तकरीब की ख़ास कशिश रही। रविंदर यादव ने फनकारों के साथ एमएलसी कविता की सालगिरह मनाई, केक काटा और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की गई। और इस पूरे मंजर को ड्रोन कैमरे में कैद किया गया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीआरएस एमएलसी कविता की सालगिरह तकरीब में साबिक़ रियासती वज़ीर KTR, हरीश राव और दीगर कायदीन ने शिरकत की और कविता को केक खिलाया और इस मौके पर उन्हें मुबारकबाद भी पेश की गई। गोलकुंडा के नौजवानों की जानिब से हर साल शहरी का इंतज़ाम मुफ्त में किया जाता है। ख़ासतौर पर हॉस्पिटलों में काम करने वाले अटेंडेंट्स और हॉस्टलों में रहने वाले तलबा को मुफ्त में सहरी पहुँचाई जाती है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ की इत्तला के मुताबिक हर साल ये कार्य खैर अंजाम दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 साल से सरजमीन गोलकुंडा तारीखी ज़मीन से अल्हम्दुलिल्लाह एक काम अंजाम दिया जा रहा है। ज़रूरतमंदों को सहरी पहुँचाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पकवान किया जाता है, पैक कर हॉस्पिटल में रहने वाले मरीजों के साथ तीमारदारी करने वाले लोगों को और स्टूडेंट्स को सहरी दी जाती है। जो अजलाओं से आके स्टूडेंट्स यहाँ पर मुकीम है, जहाँ तालीम हासिल करते हैं, जो पढ़ते हैं, उनके लिए सहरी का इंतज़ाम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के अंदर मेरे तमाम साथियाँ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ कई तंजीमें जुड़े हुए हैं जो काम को अंजाम देते हैं। अल्लाह के फजल करम से ये काम इंशाअल्लाह और भी आगे भी जारी व सारी रहेगा। मैं इस मौके पर तमाम मेरे साथियों का, तमाम मेरे साथ देने वालों का, इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी नेक ख्वाहिशात को पूरी फरमाए, आमीन। शहर हैदराबाद की चारमीनार पुलिस ने एक मुलाजिम राम स्वरूप को 70 लाख रुपए के गबन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि मुलजिम ने धोखाधड़ी से हासिल करदा रकम से राजस्थान के मोहन राव से 40,000 रुपये में एक देसी पिस्तौल और 5 कारतूस खरीदे। पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर यह सामान जब्त किया। इसके अलावा मुलजिम ने 2 आईफोन भी खरीदे। गिरफ्तार मुलजिम को 12 मार्च को अदालत में पेश कर दिया गया। यह कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस P चंद्रशेखर की निगरानी में की गई। DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा IPS ने मीडिया को तमाम तर तफसीलात से वाकिफ करवाया। गुड इवनिंग। आज यहाँ चारमीनार पुलिस स्टेशन लिमिट्स में राजलक्ष्मी टेक्सटाइल्स के जो ओनर हैं उन्होंने हमें कंप्लेंट दिया था कि उनके वहाँ जो काम करने वाला राम स्वरूप सन ऑफ उमरा है 22 साल का, उसने लगभग 70 लाख रुपए का मिसअप्रोप्रिएशन किया है। और इस मुद्दे पे क्राइम नंबर 41 ऑफ 25 है अंडर सेक्शन 316, 318, 351 BNS एंड हमने एक चीटिंग केस बुक किया था। जब इस अक्यूज को हमने पकड़ के इससे इंक्वायरी की तो इसने इंक्वायरी में ये कॉन्फेस किया कि इसके पास एक शॉर्ट वेपन है। ये शॉर्ट वेपन जो है इसके इलीगल पोजेशन में है। इस पिस्टल में स्पेसिफिक एक कंट्री मेड पिस्टल है जिसमें एक स्टार मार्क है और इसके पास इस पिस्टल के अलावा इसके साथ 5 बुलेट्स भी बरामद हुई है। इस पिस्टल के बारे में इंक्वायरी करने में ये पता चला है अभी तक ये मुंगेर बिहार में बनती है और वहाँ पे इलीगली मैन्युफैक्चर होती है और वहीं से बाकी जगहों में पहुँचती है। तो इस सिलसिले में हमने सेक्शन 29 ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट में भी इसको बुक किया है और इसको अरेस्ट करते हुए ये वेपन हमने अभी सीज किया है। इसमें फर्दर इंक्वायरी की ये वेपन किससे, इसके मुताबिक, इसके कहने के मुताबिक इससे राजस्थान में अपने एक दोस्त से ये वेपन खरीदा है। बट उस दोस्त को भी हम इस केस में बुक करेंगे, फर्दर इंक्वायरी करके पता करेंगे कि इसके पास ये इलीगल वेपन आया कैसे। फिलहाल के लिए इसको मैनेज करके रिमांड कर रहे हैं और ये वेपन भी हमारे सीजर करें। शहर हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाला अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां लिफ्ट में फंसकर एक 4 साला मासूम बच्चे की जान चली गई। ये वाक़या आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक अपार्टमेंट में पेश आया, जहां 6 मंजिला इमारत में एक मेंस हॉस्टल भी है। मुतवफ़ी बच्चा सुरेंद्र के वालिद शाम बहादुर इस इमारत में चौकीदार के तौर पर काम करते हैं। उनका ख़ानदान लिफ्ट के करीब एक छोटे से कमरे में रिहाइश पजीर है। चारशंबे की रात तकरीबन 10 बजे सुरेंद्र खेलते हुए लिफ्ट के दरवाजे के दरमियान आ गया और बदकिस्मती से फंस गया। जब वो नज़र न आया तो उसके वालिदैन ने परेशानी के हाल में तलाश शुरू की, जिसके बाद वो लिफ्ट में खून में लथपथ बेहोशी की हालत में मिला। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस पहुँच गई और बच्चे को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इसे
मुर्दा करार दिया। इस पूरे मामले को लेकर कॉरपोरेटर विजयनगर कॉलोनी डॉक्टर मोहम्मद कासिम ने मीडिया को तफसील भी बताई। आज मेहदीपट्टनम डिवीज़न में बिल्कुल सेंटेंस कॉलेज के ऑपोजिट कुतुबशाही मस्जिद के पास एक इंसिडेंट हुआ। लिफ्ट में एक बच्चा फंस गया 4.5 साल का, और उसके बाद जो है एमएलए जनाब माजिद हुसैन साहब को इसकी इतला मिली, तो तुरंत मिलते ही एमएलए माजिद साहब ने मुझे और यहाँ के एरिया प्रेसिडेंट चांद भाई को यहाँ पर भिजाया। हम जब तक पहुँचे, जब तक बॉडी यहाँ से निकाल दिए थे और पुलिस जो है लेके ऑलिव हॉस्पिटल गई, ऐसा इतला कांस्टेबल ने दिया है। हमने यहाँ के मेंटेनेंस जो कर रहे हैं बिल्डिंग के, उनसे भी हमने मुलाकात की, और यहाँ के तमाम स्टूडेंट्स जो हॉस्टल चल रहा है उन लोगों से भी बातचीत की है। और वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा है जो उसका कवरेज आता बोल के वो बता रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो सीसीटीवी जो है कवरेज भी हम चेक करेंगे। और इसमें अगर चाहे वो लिफ्ट वालों की गलती हो या फिर ये अपार्टमेंट जो चला रही है हॉस्टल उनकी गलती हो, हम इसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा इंसिडेंट हो गया नामपल्ली में, और बराबर हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई, और केसेस बुक होंगे। और ऐसा हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ चला रहे, बहुत मुबारक आपको, मगर किसी की जान के परवाह किए बिना आप चलाएंगे तो हम ख़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही एमएलए साहब करेंगे। मैं यहाँ से आसिफ नगर पीएस जा रहा हूँ, वहाँ पर देखना है ऑलिव में क्या हुआ बच्चे का, और वहाँ से मॉर्चरी शिफ्ट कर रहे, ऐसी इतला मिली। मैं उस्मानिया मॉर्चरी भी जाऊँगा और पूरा सीसीटीवी फुटेज हम चेक करेंगे, और इंशाल्लाह क्या है मज़ीद जो है एमएलए साहब से डिस्कस करके इसके ऊपर हम लीगली प्रोसीड करेंगे। मेरे हिसाब से देखिए कंसर्न पीएस के पास इसका डेटा होना चाहिए, क्योंकि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले कंसर्न पीएसएस ने तमाम हॉस्टल्स का डेटा। और बात मौसम के हवाले से तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है। निर्मल जिला के लिंगापुर इलाके में सबसे ज़्यादा 40.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज हुआ, जबकि हैदराबाद के फलकनुमा में सबसे कम 37.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। निर्मल, आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंशरियाल, निज़ामाबाद, पिदापल्ली और कामारेड्डी जैसे अजला में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ करने के बाद लोग शदीद गर्मी से परेशान देखे गए। आइंदा दिनों में मज़ीद शिद्दत का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि 18 मार्च तक गर्मी की शिद्दत बढ़ सकती है। अवाम को मशवरा दिया गया कि वो बिला ज़रूरत घरों से बाहर दोपहर के औकात में ना निकलें। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने पेपर लीक मामले पर आज बीजेपी को फिर तनकीदों का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में पेपर लीक हो रहे हैं और ये तलबा के मुस्तकबिल के लिए पदमव्यू पेपर लीक का बुहरान बन गया। राहुल ने कहा कि 6 रियासतों में 85 लाख बच्चों का मुस्तकबिल ख़तरे में है। हमारे नौजवानों के लिए ये एक वबाल जान बन गया। पेपर लीक मेहनती तलबा और उनके ख़ानदानों को गैर यकीनी और तनाव में डालता है और उनकी मेहनत का फल छीन लिया जाता है। इसके अलावा ये आने वाली नस्ल को गलत पैगाम देता है कि बेईमानी मेहनत से बेहतर हो सकती है, जो मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ कि एनईटी का पेपर लीक ने मुल्क को हिलाकर रख दिया और हमारे एहतजाज के बाद मोदी हुकूमत एक नए कानून के पीछे छुप गई और उससे एक हल बताया, लेकिन हालिया कई लीक्स ने इसे नाकाम साबित कर दिया है। ये संगीन मसला एक नाकामी है। ये तभी ख़त्म होगा जब तमाम सियासी जमातें और हुकूमतें अपने इख्तिलाफात भुलाकर मिलकर ठोस इक़दामात करें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा से मुतालिक अपने साबिक़ बयान से यू टर्न ले चुके हैं और अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाई। ये शायद अरब ममालिक के मुतअद्दिद फ़ैसले की वजह से मुमकिन हो सका है। अमेरिकी सदर ने जोर देकर कहा कि कोई भी किसी फ़लस्तीनी को गजा से नहीं निकाल रहा है। वाइट हाउस में आयरिश वज़ीर-ए-आज़म माइकल मार्टिन के साथ मुलाकात के मौके पर ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में बयान दिया। हालांकि अमेरिकी सदर इससे पहले फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल करने और गजा को ख़रीद कर सयाहती मरकज़ के तौर पर आबाद करने की बात कह चुके हैं। उन्होंने इसके लिए एक ड्रीम वीडियो भी शेयर किया था जिसमें ट्रंप का गजा कैसा होगा उसकी अक्कासी की गई थी, लेकिन अब खुद ट्रंप ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। अमेरिका में गिरफ्तार किए गए महमूद खलील की रिहाई के लिए दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। ट्रंप इंतजामी की हिदायत के बाद कोलम्बिया यूनिवर्सिटी इन दिनों निशाने पर है और फ़लस्तीन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले तमाम तलबा और समाजी कारकुनों के खिलाफ इक़दाम शुरू हो गए। खलील की गिरफ्तारी भी ट्रंप के मनसूबे का हिस्सा है। सैकड़ों अमरीकी तलबा, समाजी कारकुन खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज पर उतर आए और ट्रंप की इसराइल दोस्ती के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई और खलील को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया जा रहा है। From the Democrats and the Republicans, are you afraid? Will you go home? Will you forget Mahmoud Khalil? At what point will you stop? There's still every single iota of injustice in this world, because that is why we are here. Because God Almighty told us, O people of faith,
Be of those who consistently stand up for the sake of justice, stand in the face of oppression, be witnesses before God Almighty, even if it is against yourself or your countrymen or everything that surrounds you, even if you are... और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। गवर्नर की तौहीन करना बीआरएस लीडरों की आदत, कांग्रेस हुकूमत ने जो वादे किए उसको एक के बाद दीगर पूरा किया जा रहा है, तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने किया दावा। जनूबी हिंद की रियासतों की 22 मार्च को ऑल पार्टी मीटिंग, हल्कों की हदबंदी मामले को लेकर डीएमके के वफ्द की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। तेलंगाना गवर्नर का असम्बली से खिताब चैट जीपीटी से तैयार किया गया, साबिक़ा रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम, ऐवान में हुआ हंगामा। तेलंगाना काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी ज़रूरी, फौरी एक मुस्लिम शख्स को रियासती वज़ीर बनाया जाए, बीआरएस लीडर महमूद अली का रेवंत रेड्डी हुकूमत से मुतालबा। 6 रियासतों में 85 लाख बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है, पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर की फिर तनकीद। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा से मुतालिक अपने साबिक़ा बयान से यू टर्न ले लिया, साबिक़ा मौक़िफ़ में तब्दीली, कहा फ़लस्तीनियों को नहीं निकाला जा रहा है। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।